Okay. So we developed the OTP auth server right yesterday. Now today we are going to develop the OTP resource server. Okay. अभी थोड़ा मतलब हम घुसेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, बट बिलीव मी, ये करने के बाद तुम्हारा जितना भी कंफ्यूजन है ना मन में कि क्या इधर कहाँ से कहाँ फ्लो चला गया, ये करने के बाद वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. ओके, just trust me, just wait and see, and you will just get all the concepts. So first we need to go with a spring initializer project. What we are going to, you guys also can start. So I'll just create something like photon artifact id will be spring security with what spring security with OTP resource server. Yes, W. Yes. Okay, what will be the dependency? It will be the first dependency will be Spring Web, right? And we need to add the dependency of Spring Security. और दो तीन डिपेंडेंसी होगा, बट अभी के लिए इतना ही सही है. शायद वो डिपेंडेंसी इधर अवेलेबल नहीं है. चलो बाद में देखते हैं, कोई नहीं. I'll just create the artifact. So here is my artifact, right? Spring Security with the OTP resource server. OTP resource server. I'll just copy it. Then I will go to desktop. Where is my project? Control V. Now if I come here, प्रोजेक्ट दिख रहा है मेरे को. pom.xml में मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा. स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ OTP auth server, OTP रिसोर्स. ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है. ओके. मेरा पहला काम होगा, फर्स्ट व्हाट यू स्टार्ट विद अ मॉडल. तो मेरा एक मॉडल चाहिए, राइट? जो मॉडल में मैं कुछ इनपुट दूंगा, राइट, एंड आई विल एटलीस्ट कॉल दैट ऑथ सर्वर, जहाँ पे मेरा ऑथ सर्वर में बैठा है, राइट? सो आई नीड टू, और लेट्स रीइटरेट द फ्लो. कैसे होगा? यूज़र विल कॉल वन एपीआई. ठीक है, उस एपीआई का कॉल समझ लो कि लॉगिन एपीआई है. वो एपीआई के साथ उसको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा. ओके. देन वंस यूज़र नेम पासवर्ड इज देयर,
then what we'll do, we will uh, we will call the auth, right? User auth. So user auth once being called, it will send the OTP for that user, which I can see in the databases, in the database, right? Then after that, again the same login, but with the username and OTP. And in that flow, I should give some token. Next, what I will do, I'll ask him to use the token right in the header, authentication header, and give me back. And I will access the one endpoint, that is a hello resource endpoint, what you can think of, right? And using the JWT token, the user should able to get the response from hello controller, right? ये है ना flow? Yes. हेलो, ये है ना? हाँ, अभी एक काम करते हैं, अभी मॉडल से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. आई विल क्रिएट सिंगल मॉडल, राइट? मैं बताता हूँ क्यों ऐसा सिंगल मॉडल से हमारा काम हो जाएगा. एंड आई विल गिव थ्री थिंग्स. प्राइवेट, ओके, स्ट्रीम, यूजर नेम, प्राइवेट, स्ट्रीम, पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग, इसको हम देते हैं OTP. ठीक है, क्योंकि यही यूज़र ऑब्जेक्ट को हमको दो बार सेंड करना है, दो बार कॉल करना है, एक ऑथ के लिए और एक चेक OTP के लिए. ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, मतलब इट इज़ लाइक द सीरियलाइजर, राइट? सो यू आर सेंडिंग यूजर नेम OTP, दैट मीन्स इट विल बी मैप टू द यूजर OTP. You are sending username password, then it will be mapped to the user, right? So I'm using this simple, not I'll not make it. And the other part is, I will make this first call, that is the login, it is a get call. Get call में हमको username password कैसे मिलेगा? I'll take it from header, not in body. Okay, so हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, आई विल गो इन डिटेल. अभी के लिए इसको एक काम करते हैं, सारे गेटर सेटर कर देते हैं. लॉम्बोक है तो ठीक है, डिजाइन का कॉम्प्लेक्सिटी आई जस्ट टेल लेटर. कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, नो वर्ड कंस्ट्रक्टर दे देता है. सॉरी, ठीक है. So this is the my user model, right? Next, what I need to do, I need to I need to create a proxy, right? What proxy will do, क्योंकि अगर मेरे को auth सर्वर को कॉल करना है, तो आई नीड टू at least create a proxy, so that proxy I'll from anywhere of my this project I can use the proxy method to call the auth server. ठीक है, एक proxy बनाते हैं. So I will create a new package. The package name will be proxy. ठीक है, proxy के अंदर हम रखेंगे new java class और proxy. ठीक है, और proxy का काम क्या होगा? और proxy का काम कुछ नहीं है, इसका काम है there should be two method. public auth के टाइम आना चाहिए void, then I need to have a what auth user. ठीक है, और मेरा होगा public
boolean, then check OTP. ओके, सही है। सुन, हमको किसी भी अगर रेस्ट एंड अनदर रेस्ट सर्विस को कॉल करना है तो वी नीड टू हैव अ रेस्ट टेम्पलेट। तो रेस्ट टेम्पलेट हमको कहाँ से मिलेगा? तो हम एक काम कर सकते हैं, एक लेते हैं इधर प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथ यूआरएल। ऑथ यूआरएल भी चाहिए, कौन सा यूआरएल में हमको करना है, एंड प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। अभी इसका वैल्यू कहीं से भी ऑटो एयर करेंगे, दूसरा कहीं पे एक रेस्ट टेम्पलेट बनाएंगे इसको ऑटो, और इसका वैल्यू हम लेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से। सो आई विल राइट @hello, right, then I need to start with this, this, this और डॉट यूआरएल, ठीक है। मेरे को यहाँ से ऑथ यूआरएल का वैल्यू मिलेगा, रेस्ट टेम्पलेट मिलेगा। अभी मेरे को क्या करना है? सो ऑथ यूआरएल आई विल यूज एज्यूम दैट लोकल होस्ट API v1 इधर तक मैं यूज़ करूँगा, बाकी जो है वो तो चेंज होगा, राइट। सो मैं एक के लिए होगा यूज़र ऑथ, एक के लिए होगा OTP चेक, सो दैट आई विल you know give it as a and concatenate that portion. So but I need to call a REST template. Can anyone tell me how I can call another service? What method I should use? auth के लिए बोलो। Anyone? Yes, I need to call the REST endpoint, right, for that auth dot, सीधा एक्सचेंज में जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। वो पोस्ट मेथड है, राइट, तीनों पोस्ट मेथड है। सो बट आई विल यूज द टू मेथड, ऐड नहीं, ऑथ एंड चेक OTP दोनों पोस्ट मेथड है। सो आई विल जस्ट राइट पोस्ट फॉर एंटिटी, यस। तो इसमें क्या देना है? ऑथ यूआरएल प्लस इसमें क्या दो, यूज़र ऑथ, और इसके साथ पोस्ट फॉर एंटिटी में क्या देना वो बोल रहा है, पहले यूआरएल दो, उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो दो। तो रिक्वेस्ट में हमको क्या देना है? कुछ एक यूज़र चाहिए, राइट, यस और नो? यस, नो, गलत, राइट। तो यूज़र मेरे को कहाँ से पास करना? ऑथ यूज़र की इधर से मेरे को एक यूज़र चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्स टाइप। रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा? इससे कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है? तो फिर कौन सा क्लास दूँ? नल दे दूँ? चल जाएगा, क्या बात है। सो जावा ने पहले ही कुछ तो सोच के रखा था कि so there is one class, void class, okay, you can give it, don't use null if your post method is not returning anything, but don't use null। null दोगे तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, ओके, फाइन, ये सुनो, ठीक है। अभी इसमें ऑथ यूज़र में यही हम करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वो सब छोड़ो, वो सब बाद में देखते हैं। नाउ लेट्स कम हियर टू चेक OTP। चेक OTP में क्या करना है बताओ? सेम चीज़, राइट। यहाँ पे भी यूज़र होगा, बट इस यूज़र में जो होगा, ये यूज़र में रहेगा हमारा सेम ऑब्जेक्ट ही होगा,
बट इट कंटेन द OTP। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़र होगा, ये यूज़र नेम OTP के यूज़र होना चाहिए, राइट। We will handle it, and this should be just boolean। okay, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। सो बूलियन यहाँ से तो आया है, ठीक है, बट इट विल रिटर्न ए रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ बूलियन, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ बूलियन, ठीक है। सो it is like the response entity, then what I will do, मेरे को response entity तो मिल गया है, मैं ये मेक श्योर करूँगा रिटर्न। दो चीज़ कर सकते हैं, तो रेस्पॉन्स एंटिटी का बॉडी सीधा चेक कर लो, उससे अच्छा कि मैं सिर्फ सिंपल स्टेटस चेक कर लेता हूँ। गेट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड के क्या आना चाहिए, यस, ओके। कहाँ है ओके? कौन सा? ठीक है, ओके, चलेगा नहीं है। और इसको मैं एक कंपोनेंट ऐसे डिक्लेयर कर दूंगा, तो इसका एक @component, so this will be component, it will be available throughout my project। मैं कहीं से भी auth proxy का यूज़ कर सकता हूँ। एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट अभी से कर देते हैं, auth.url को मेरे को किधर लिखना है, in the application.properties। okay, what will be the value, http localhost, वो शायद 8080 पे रन हो रहा था, ठीक है, कोई नहीं। देन आई विल गिव API v1, ठीक है, मेरा प्रॉक्सी बन गया, मॉडल बन गया, यस। अभी आते हैं असली चीज़ पे, अभी तक तो सब सिक्योर्ड है, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को कॉन्फ़िग बनाना है। सो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी ये है, जस्ट लिसन दिस वर्ड केयरफुली। हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम कॉन्फ़िग को क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। अंजलि यू देयर, राइट, ठीक है। ये अच्छे से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो स्प्रिंग सिक्योरिटी उसका एक फ्लो है, उसका फ्लो ऐसा है, लेट मी गो द थिंग, ऑथ मैनेजर, राइट, इट शुड बी कॉल्ड फ्रॉम द फिल्टर, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर से ऑथ मैनेजर कॉल होगा, ऑथ मैनेजर से जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट। नाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास बाद जाएगा यूजर डिटेल्स, इट विल यूज द यूजर डिटेल्स एंड द पासवर्ड एनकोडर, एंड आफ्टर दैट इट हैज़ ऑथेंटिकेट मेथड, जहाँ से वो है सक्सेसफुल ऑथेंटिकेटेड या ऑथेंटिकेशन अभी तक हुआ नहीं, ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके। दिस इज माई वर्क फ्लो। हमने जब इम्प्लीमेंट किया था तब हमने देखा था, इनिशियली सोचो कि हमने सिर्फ यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर दिया, स्प्रिंग ने उसको उठा लिया, बाकी उसने खुद कर दिया, ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइडर उसने खुद प्रोवाइड किया, डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर वो खुद प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये सुनो, फाइन, राइट। ये तो हमने प्रीवियसली किया है कि हमने सिर्फ यूज़र डिटेल सर्विस को दे दिया, यहाँ मेरा यूज़र डिटेल्स का इंटरफेस है, आपको यूज़र का डिटेल्स चाहिए तो आप इधर से आओ, मैं आपको, मेरा पास सारे स्टोर है, या तो इन मेमोरी है या डेटाबेस में कहीं से भी है, मैं उसको उठा के आपको दे देता हूँ कि ये सब वैलिड है कि नहीं। बट हियर द मेन क्राइटेरिया इज लाइक, इन दिस सर्विस वी आर नॉट मेंटेनिंग द यूज़र डिटेल्स। हम मेंटेन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। देयर इज अनदर सर्विस which is being called, or which actually maintaining the user details via some user add, right, endpoint। तो हमारे पास तो यूज़र है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते, कैसे कॉन्फ़िगर करें, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अभी हम क्या करेंगे, पहली बात हम एक फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ओके।
कुल फिल्टर डिज़ाइन करके हम कर देंगे कि ये फिल्टर शुद्ध, तो फिल्टर जब तुम इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे एक एक मेथड है जहाँ पे आप फिल्टर को बोल सकते हो कि वो कौन सा रिक्वेस्ट को ले और कौन सा रिक्वेस्ट को छोड़ दे, नहीं फिल्टर करे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि तुम जो हमारा एक फिल्टर होगा जिसको हम बोल सकते हैं कि इनिशियल ऑथ फिल्टर बोल सकते हैं। एंड आवर एक्सपेक्टेशन इज जब यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा विथ यूज़र नेम पासवर्ड और यूज़र नेम OTP, मेरे को वो फिल्टर में कंट्रोल चाहिए, मतलब उस फिल्टर के अंदर आना चाहिए। ओके, सेकेंडली जब वो सब कुछ हो गया JWT में कॉल करेगा तो आई विल हैव अनदर फिल्टर जिसमें मेरा JWT फिल्टर को कॉल चाहिए, जो नॉन लॉगिन वाला एनी भी, मतलब लॉगिन विदाउट लॉगिन और नॉन लॉगिन जो एंड पॉइंट है उसको एक्सेस करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट विल डू इनसाइड दैट फिल्टर। ओके, अभी बोलो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, फिल्टर को, फिल्टर से क्या करते हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन फिल्टर से किसको देते हैं, रिक्वेस्ट किसको देते हैं। So I told earlier कि it creates a authentication object out of the username password and it delegate or it call the authentication manager. Yes. तो we will do the same thing. हम क्या करेंगे, हम एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे बट हम सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, हम उसमें ऑथोरिटीज़ नहीं डालेंगे, इज ऑथेंटिकेटेड टू नहीं करेंगे, सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर को डेलीगेट कर देंगे। ठीक है, अभी ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जो भी है, राइट, वॉट एवर ऑथेंटिकेशन मैनेजर इट इज़ हैविंग, वो क्या करेगा, उसका काम होगा, उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कोई प्रोवाइडर तो ढूंढे, दिस प्रोवाइडर ये मेरे को, मतलब अगर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है, पहले प्रोवाइडर ढूंढेगा कि कौन सा प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो वी विल बिल्ड दैट प्रोवाइडर, बट प्रोवाइडर के अंदर जो यूज़र डिटेल पासवर्ड एनकोडर है वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम हमारा सिस्टम में यूज़र का कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोवाइडर के अंदर जो ऑथेंटिकेट मेथड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर हम API को कॉल करेंगे कि पता करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही हुआ देन वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप कि हमको ऑथेंटिकेशन जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट वापस देना है, वी विल सेंड द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बैक। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द एक्चुअल फ्लो, राइट, बट ऑन द अदर साइड लेट्स टेक ए लुक ऑन द अदर साइड, हु विल गिव मी द ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर कौन देगा मेरे को, मैं क्या स्प्रिंग से बोल सकता हूँ कि तुम ऑथेंटिकेशन मैनेजर दो, मैं फिल्टर के अंदर उसको ऑटो ऐड करके कॉल करूँगा। कैन आई से आई नीड द एक्चुअल ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जिससे मेरे को जहाँ पे मैं फिल्टर में लगाऊंगा कि फिल्टर में मैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करूँ। ये सुन लो, यस, कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा, ठीक है, लेट्स डू द कोड देन इट विल बी वेरी इजी। अतः हम अभी छोटा छोटा चीज़ से करते, तो मैंने जैसे बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सो पहला ऑथेंटिकेशन मैं क्या बनूंगा, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, इट शुड एक्सटेंड, हम उतना मेहनत क्यों करेंगे, सारे हमारे पास तो ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड के है ना, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये स्प्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट है। बट ये बोलता है कि तुमको अगर इसको एक्सटेंड करना है, इसका दो जो कंस्ट्रक्टर है, एक दो वाला एक तीन वाला, मैं दो वाला तीन वाला में डिफरेंस बोला था, याद है। दो वाला कॉल करोगे तो सिर्फ सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड होके बनेगा, तीन वाला कॉल करोगे तो ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम ऑथोरिटीज़ भी ऐड करते हैं। सो इफ़ आई क्रिएट ए ऑब्जेक्ट with this constructor,
it will be only just it will have the principal and credential. But if I call this authentication object will मतलब will be treated as it has been authenticated. ठीक है, क्लियर है? मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आ गया. अभी मैं क्या करूँगा, दूसरा एक बनाऊँगा. क्या बनाऊँगा? यूज़र नेम OTP ऑथेंटिकेशन. जस्ट राइट, होल्ड योर थॉट्स. क्या हो रहा है? इट विल क्लियर एवरीथिंग. यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन. Create constructor. I'll create the constructor what I am having. ठीक है, दोनों ऑथेंटिकेशन बना दिया. सो दैट वी कैन व्हेनेवर मेरे पास कुछ फिल्टर के अंदर मैं ये ऑब्जेक्ट बना के ऑथेंटिकेशन मैनेजर को दे सकता हूँ. एंड मेरे को ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यूज़ करने के लिए कुछ प्रोवाइडर भी चाहिए, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी चाहिए, राइट, जिसका ऑथेंटिकेट मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा. सो आई विल राइट द प्रोवाइडर ऑल्सो. यूज़र नेम OTP authentication provider. ठीक है, it should implement authentication provider. authentication provider का क्या मेथड है? ये दोनों मेथड. अभी बताओ इसमें मैं क्या लिखूँ? ये प्रोवाइडर का कंट्रोल तभी आना चाहिए जब मेरा पास जो भी ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट आया इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ यूज़र नेम OTP ऑथेंटिकेशन, नॉट यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, राइट? यस. डॉट ये लाइन समझ में आया कि यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करूँ इसमें? मैं एक बार क्लासिक एग्जांपल दिया था कि एक होटल की रूम पे आप जब जाते हो जहाँ पे आपके पास दो तरीका है अंदर घुसने के. एक होता है कार्ड, एक होता है कीज़. ठीक है, कार्ड का जो है वो एक प्रोवाइडर है, कीज़ का जो है एक प्रोवाइडर है. ओके, नो आप कैसे कार्ड और कीज़ को अलग रखोगे? सो दिस इज द मेथड दैट सपोर्ट्स दिस सपोर्ट्स विल बी डेडिकेटेड. तो कार्ड के लिए आपका एक प्रोवाइडर होगा, कीज़ के लिए एक प्रोवाइडर होगा. जब भी आप कार्ड यूज़ करोगे ऑथेंटिकेशन तब वो प्रोवाइडर एक्टिव हो जाएगा. वो प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल यूज़ दैट प्रोवाइडर. एंड जब आपका कीज़ के लिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल दैट कीज़ प्रोवाइडर. तो आपको इसीलिए इस सपोर्ट में वो मेंटेन करना पड़ता है कि आपका जो प्रोवाइडर ये कौन सा ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है. तो इसीलिए हमने दिया क्या, इट इज़ ए यूज़र नेम OTP. यूज़र नेम OTP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है. सो दिस इज द यूज़र नेम OTP ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है. क्लियर है? थोड़ा ये मतलब प्रोलॉन्ग DS है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्या? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये प्रोवाइडर विल ओनली cater or only support or only will be called when you are using this type of authentication, username OTP authentication. ठीक है, मैं मतलब आई जस्ट गिव द एग्जांपल, जस्ट स्टे विथ मी. ये चीज़ के साथ ये थोड़ा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑल द इंफॉर्मेशन क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी दैट ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट. ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट में पर्पस क्या है? कैन एनीवन से व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट? यहाँ पे ऑथेंटिकेट में क्या करना है? बोलो बोलो. आई नीड टू ऑथेंटिकेट, राइट?
गुड, यश। यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा ऑथेंटिकेशन है? ओटीपी ऑथेंटिकेशन है, राइट? दिस इज द ओटीपी ऑथेंटिकेशन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू वन थिंग. मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले ऑथेंटिकेशन की यूज़र नेम एंड ओटीपी निकालना है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन यूज़र ऑब्जेक्ट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. न्यू यूज़र, सॉरी, ठीक है. और यूज़र डॉट सेट, मैं इसमें क्या सेट करूँगा, इसमें सेट करूँगा यूज़र नेम. व्हाट इज़ दैट यूज़र नेम? ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम, जो तुमको नेम मिला. एंड व्हाट आई विल गोइंग टू सेट, यूज़र डॉट सेट ओटीपी. एंड इसमें मैं क्या करूँगा, ऑथेंटिकेशन डॉट गेट क्रेडेंशियल डॉट टू स्ट्रिंग. मेरे यूज़र ऑब्जेक्ट आ गया, ये सुनो. यस. अब मेरे को क्या करना है, ऑथ प्रॉक्सी को कॉल करना है, ठीक है. तो मेरे को यहाँ पे ऑटो वेयर करना पड़ेगा. ऑटो वेयर में मैं क्या करूँ, मेरे पास ये आ गया ऑथ प्रॉक्सी, ठीक है. यहाँ से मैं कॉल करूँ ऑथ प्रॉक्सी डॉट चेक ओटीपी यूज़र. क्या मिलेगा यहाँ से, इफ बुलियन मिलेगा. अगर उसको ओटीपी किसी ने दे दिया और ओटीपी करेक्ट है, राइट, व्हाट आई शुड डू, कैन आई डू, कैन आई मेक इट ऑथेंटिकेटेड? कैन आई मेक इट ऑथेंटिकेटेड? ठीक से सोचो, कैन आई मेक इट ऑथेंटिकेटेड? सेकंड स्टेप पूरा हो गया, बट कैन आई मेक इट ऑथेंटिकेटेड? मेरा पर्पस क्या है, उसको एक टोकन देना है, टोकन से ऑथेंटिकेट करना है. अभी तो ठीक है, ऑथेंटिकेटेड इट्स लाइक दैट योर ओटीपी इज गुड, बट ओटीपी गुड डजंट मीन दैट यू योर रेस्ट एंड पॉइंट को आप कॉल कर सकते हो यूजिंग द ओटीपी. रेस्ट टू एक्सेस द, आप ऑथेंटिकेट दे देते हो, मतलब आप सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हो जो ऑथेंटिकेटेड मार्क हो गया. तो कोई अगर एंड पॉइंट उसके बाद जाएगा तो उस एंड पॉइंट को आप एक्सेस कर सकते हो. बट हमारा तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, राइट? हमको क्या करना है, वो जो JWT के साथ कॉल करेगा, टोकन के साथ कॉल करेगा, देन वी विल गिव द एक्सेस टू द एंड पॉइंट. ओटीपी पे भी नहीं देंगे, यूजर नेम पासवर्ड में भी नहीं देंगे, बट वी विल नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन. हम ये बोलेंगे कि तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चालू है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, जल्दी मिल जाएगा, बट यहाँ से हम नहीं देंगे. ओके okay? यहाँ से हम सेम चीज़ भेजते हैं, ठीक है. यूज़र नेम ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम ये देते हैं यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम. एंड यहाँ पे हम पासवर्ड दे सकते हैं ये ऑथेंटिकेशन के लिए. इसको कहीं पे चाहिए नहीं चाहिए सर,
तो इसको नल कर, अगर उसका मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स विल थ्रो we will throw what new bad credential exception. वह इसको हम एज कंपोनेंट डिक्लेयर कर देते हैं। किसी का कोई कंफ्यूजन है? डोंट पुट टू मच प्रेशर और डोंट थिंक टू मच, जस्ट थिंक दैट दिस, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये मेथड का पर्पस क्या है? ये मेथड का पर्पस है कि तुम्हारे पास यूज़र ओटीपी आया, मेरे को एक ऑथेंटिकेट करना है, बट मैं फुल ऑथेंटिकेट नहीं दूंगा, आई विल जस्ट चेक इट यूजर नेम ऑथेंटिकेट, आई विल गिव ए ऑथेंटिकेशन, ठीक है तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चालू है, राइट? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ गलत हुआ तो आई नीड टू सेंड ए एक्सेप्शन, दैट्स ऑल, नथिंग। ओके, अभी सेम चीज़, राइट, आई नीड टू डू द थिंग्स फॉर यूजर नेम password auth provider. What I'll do, it should also implement what authentication provider, and it should implement both method. yes, return ये कब ट्रू होगा, जब authentication is assignable for what, great, username password authentication dot class. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ कोड हम इधर लिख सकते हैं जो हम इधर लिखे हैं यूजर नेम ओटीपी ऑथ प्रोवाइडर में, कि पहले एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मेरा यूजर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, लेट्स टेक ए, चिंता मत करो, जस्ट फॉलो इट, विल आई विल शेयर द कोड, थोड़ा बहुत स्टेबल होने के बाद आई विल शेयर द कोड। ओके, ऑटोवेयर ऑथ प्रॉक्सी, मेरे को इधर भी ऑथ प्रॉक्सी चाहिए, और यहाँ पे क्या करूँ मैं, डॉट व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक यूजर नेम, यस ऑथ यूजर को कॉल कर दो, राइट। ओके, देन ये ऑथ यूज़र जो भी रिटर्न करते हैं, इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड तो आपका मोबाइल पे कुछ आ जाएगा, बट अगर कुछ गलत हुआ, आई विल नॉट सेंड यू एनी एक्सेप्शन, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड गलत है इसलिए ओटीपी नहीं है। ये कभी भी होता है ना, वो बोलता है कि सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, बट आपको आता नहीं, इफ़ यू आर नॉट ए वैलिड यूज़र इट विल नॉट कम, राइट। एग्जैक्टली, यहाँ पे पासवर्ड से कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे राइट राइट हमको ये चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, गुड कैच, हमको पासवर्ड से चाहिए, राइट, हम ऑथेंटिकेशन को ऑथ यूज़र को कॉल करेंगे तो इट शुड हैव ए पासवर्ड। ओके, गुड। ओके, फाइनली हमको ये रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा, व्हाट आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न
न्यू username password authentication using same thing user dot get username पासवर्ड का भी के लिए नाल कर देते, इसको भी दे दिया कंपनी। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, दो प्रोवाइडर लिख दिया। अभी हमको हमको क्या करना है, अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को कैसे करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू टॉक विथ स्प्रिंग सिक्योरिटी, राइट। सो हम उसमें थोड़ा फोकस करते हैं, उसमें हमको क्या क्या करना है, राइट। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ओके, बिकॉज दिस इज हैविंग द मैजिक। एक्सटेंड what is that security extend web security configure adapter, ओके। यहाँ पे मेरे पास protected configure, right, so I need to use this। पहले इसको करते हैं, यहाँ पे हम सारे ऑथेंटिकेशन का देते हैं कि यार ऑथ डॉट आपको इन मेमोरी चाहिए, ऑथ डॉट एड प्रोपर, सो बट हमारे पास जो है वो क्या है कि दो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। आई विल गिव दैट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। मेरे पास क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, पहला वाला है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एंड दूसरा वाला है यूजर नेम, सॉरी ये वाला ओटीपी था। ठीक है, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये दोनों चीज़ ही बोलेंगे कि भाई मेरे पास दो है। अब तुम्हारा मैनेजर को जिस ऑथेंटिकेशन के साथ मैच होगा उसको कॉल करना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे बोलूँगा, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यस नो प्रॉब्लम, ओके, डॉट ठीक है। ओके, गुड। अभी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर आप यूज़र डिटेल्स यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको आपके हैंडल में, आपने यूज़र डिटेल्स नहीं यूज़ नहीं किया, आपने सीधा दूसरा किसी को दूसरे एपीआई को कॉल करके उसका सब कुछ कर दिया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया। और मैंने ऑथेंटिकेशन को बोलते देखो भाई मैंने दो प्रोवाइडर तुमको डाल दिया, अभी तुम्हारे पास जो भी ऑथेंटिकेशन आएगा तब आप देख लेना कि किस टाइप ऑफ है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर शुड यू नो आइडेंटिफाई कि किस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है, देन उस हिसाब से ये प्रोवाइडर को यूज़ कर लेना। ओके, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यार, इतना मत सोचो। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दे, थिंक अबाउट दैट फ्लो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, और एक चीज़ था, लास्ट टाइम हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर के साथ कोई बात नहीं किया था। ऑथेंटिकेशन मैनेजर कोई भी कोड में देखोगे नहीं कि कहीं पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को एज ए बिन इंजेक्ट किया या ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कहीं पे कॉल किया। हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को छोड़ दिया था, प्रोवाइडर तक हमने पूरा इम्प्लीमेंट करके स्प्रिंग सिक्योरिटी को छोड़ दिया था, तुम अपना जो करना है करो। अभी हमको ऑथेंटिकेशन मैनेजर का भी कंट्रोल चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट देयर फिल्टर, क्योंकि हमारे पास देखो दो टाइप ऑफ यूज़र नेम पासवर्ड है, एक है यूज़र नेम ओटीपी, राइट। सो इट माइट नॉट मैच विद द देयर फिल्टर, और उसका फिल्टर काम नहीं, हम अपना फिल्टर इम्प्लीमेंट करेंगे।
और उस फिल्टर से हम सीधा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करेंगे. सो वी नीड दैट ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑल्सो. ठीक है, अभी मुद्दे पे आते हैं. नाउ कमिंग टू दैट फिल्टर. ठीक है. मैं क्या बोला था कि फिल्टर को आप थोड़ा मैं ये करता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो आई जस्ट वांट टू राइट फिल्टर. राइट, एक जो फिल्टर होगा उस फिल्टर का काम होगा कि वो यूज़र नेम ओटीपी या लॉगिन, जो भी मैं जो बोल रहा था कि लॉगिन में वो फिल्टर एक्टिव होगा और दूसरा वाला नॉन लॉगिन में एक्टिव होगा. ठीक है. और ये फिल्टर का पोजीशन होना चाहिए, मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोलना पड़ेगा वो फिल्टर को कहाँ यूज़ करना है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फिल्टर आप हर एक फिल्टर का जैसे मैंने दिखा था फिल्टर की चेन होता है, फिल्टर चेन होता है. तो मैं ऐसा नहीं कि कुछ रिकॉर्ड प्रोसेस होने के बाद आप फिल्टर लगा रहे हो. आपको एग्जैक्ट लोकेशन एटलीस्ट आफ्टर बिफोर कुछ तो बोलना पड़ेगा, सो दैट स्प्रिंग सिक्योरिटी अपना ऑथेंटिकेशन फिल्टर को बाईपास कर सकते, राइट. सो दैट नहीं तो वो तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर एक्टिवेट है, वो तो ऑन हो जाएगा ना. ओके, you need to, if you want to bypass that, then you need to do something, right. तो इसीलिए फिल्टर आप कहाँ पे लगा रहे हो उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोल सकता हूँ. सिंपल थिंग आई विल एक्सप्लेन, राइट. बट जस्ट लेट मी implement the filter. First let's create another class which is new package filter. अभी फिल्टर में मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़िल्टर बनाता हूँ सिंपल दोनों के लिए, मतलब जस्ट लॉगिन में कॉल करके एक बार यूज़र नेम पासवर्ड देगा, यूज़र नेम ओटीपी देगा, उस दोनों के लिए एक एक फ़िल्टर बनाता हूँ. और दूसरा फ़िल्टर बनाता है जहाँ पे टोकन को हम मतलब जो भी करना है करेंगे, राइट. सो या लेट्स सी व्हाट यू कैन डू नाउ. लेट मी क्रिएट द फिल्टर. पहले देंगे हम इनिशियल ऑथ फिल्टर. ठीक है. just take a look what I am going to do here. So extend once per request filter. एक ऑलरेडी फिल्टर का इम्प्लीमेंटेशन है, विल यूज़ दैट, बट इसका एक एक्सटेंड का मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा. इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए कर सकते हो. ठीक है. और एक इसका वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर का और एक इम्प्लीमेंट जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था, शुड नॉट फिल्टर. तो इस पे देखो ये थोड़ा उल्टा है, मतलब इट्स लाइक दैट शुड नॉट फिल्टर हाउ वी विल मेक श्योर. तो हमारा ये फिल्टर कहाँ पे ऑन होना चाहिए, कहाँ पे ऑन होना चाहिए, लॉगिन पे ऑन होना चाहिए, राइट. यस. तो लॉगिन पे ऑन होना है तो शुड नॉट फिल्टर में मैं कैसे दूँ कि मेरा मैं अगर ऐसे करता हूँ समझ लो मेरा एक लॉगिन करके एंड पॉइंट है, तो ये क्या चलेगा. नहीं चलेगा. क्या देना पड़ेगा, नॉट देना पड़ेगा, शुड नॉट फिल्टर, राइट. राइट. सो आई एम सेइंग दैट सबलेट पाथ में इक्वल में जो भी लॉगिन आया, राइट, उसको ही करना है. दैट मीन्स लॉगिन नहीं है तो उसको फिल्टर नहीं करना है. ओके, गुड. ये सुनो, ये जो इनिशियल ऑथ फिल्टर का काम कब होगा, लॉगिन के जब कॉल करेगा उसी टाइम पे फिल्टर एक्टिवेट होना चाहिए. ठीक है. ओके यार, हाँ तो बोलो. शुड नॉट फिल्टर इज लाइक दैट, तुम्हारा फिल्टर मतलब ऐसा है कि तुमने पूरा फ्लो को समझो पहले.
first what user will do, user will give the username password, and second it will give the username OTP, and third जो टोकन मिलेगा उस टोकन से एक एंड पॉइंट को कॉल करेगा, हेलो एंड पॉइंट. तो आई हैव हियर पूरा वर्क फ्लो में मेरा दो एंड पॉइंट, एक है लॉगिन, उसका दो इनपुट से लॉगिन होता है, एक होता है यूजर नेम पासवर्ड, दूसरा होता है यूजर नेम ओटीपी, और दूसरा एंड पॉइंट है हेलो, राइट. आपका जो फिल्टर है, मैं ये चाहता हूँ कि फिल्टर से हमको जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करना है, जो भी करना है, इसीलिए हमको फिल्टर लगाना है. बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्टर है ये सिर्फ लॉगिन पे एक्टिवेट हो, मतलब लॉगिन का जो रिक्वेस्ट आएगा उसी को ही फिल्टर करे. फिल्टर मतलब क्या होता है कि आपका कुछ चीज़ को वो या तो रोकेगा, कुछ करेगा, फिर वहाँ से पास होगा, या वो छोड़ देगा कि नहीं ये मेरा मेरा बस की बात नहीं है, राइट. सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये फिल्टर सिर्फ लॉगिन पे एक्टिवेट हो. सो इट शुड नॉट फिल्टर अदर रिक्वेस्ट which इज नॉट लॉगिन. आई एम जस्ट डिफाइनिंग दैट इन दिस. प्रोटेक्ट बुलियन इज द रिटर्न टाइप, राइट. तो ये फिल्टर एक्टिवेट होगा, देखेगा कि चलो ये लॉगिन का रिक्वेस्ट नहीं तो इसको मैं नहीं छूंगा, ये दूसरा किसी के लिए है. अगर लॉगिन का है तो मैं उसको छूंगा. ओके. एग्जैक्टली, करेक्ट. या और हमको क्या चाहिए, एक दूसरा फिल्टर चाहिए जिसका भी नाम देता हूँ, टोकन फिल्टर देता हूँ. सेम चीज, इट शुड एक्सटेंड वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, और इसमें क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है. प्रोटेक्टेड बुलियन, यहाँ पे मैं क्या दूँ, यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट सबलेट पार्ट. यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि लॉगिन है तो उसको फिल्टर ना करो, बाकी सबको तुम फिल्टर करो. यहाँ पे नॉट नहीं दूंगा, इसको मैं एज ए कंपोनेंट ले लिया. इसको भी मैं, इसका जो अंदर जो करना है वो इम्प्लीमेंट बाद में करते हैं, पहले इसको कंपोनेंट ले लिया. अभी मेरे को जो करना है वो मैं कर सकता हूँ. इसके अंदर यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूंगा कि करना क्या है. ओके. नाउ द लास्ट पॉइंट, और मैंने क्या बोला था, फिल्टर को आपको सही जगह पे प्लेस करना है. हाउ टू प्लेस द फिल्टर, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द स्प्रिंग सिक्योरिटी. तो उसके पास उसका जो दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है HTTP, जो कॉन्फ़िगर मेथड है जो HTTP लेते हैं, इसमें हम फिल्टर को ऐड कर सकते. देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है. HTTP डॉट, ओके. यहाँ पे सो यू कैन सी ऐड फिल्टर आफ्टर, ऐड फिल्टर बिफोर. अभी क्या करूँगा मैं फिल्टर बिफोर में जाऊँगा और I should use auth filter. So first of all I need to auto add initial auth filter. Auto add JWT, sorry JWT token filter. ओके. सॉरी, ऐड फिल्टर कौन सा फिल्टर ऐड करूँगा, इनिशियल ऑथ फिल्टर ऐड करूँगा, राइट. एंड किसके ऊपर, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास. तो मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोल दिया कि भाई तुम ये जो मेरा फिल्टर है ये तुम लगा दो बेसिक ऑथेंटिकेशन के जस्ट पहले लगा दो. और मैं ये भी बोल दूंगा ऐड फिल्टर आफ्टर
जो मेरा टोकन फिल्टर है उसको बाद में लगाओ। ऑथेंटिकेशन फिल्टर को बाद में लगाओ, देन ऑथोराइज रिक्वेस्ट, एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, ये यूज़ करके सारे रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना, नहीं तो छोड़ना नहीं। ठीक है, तो जस्ट आई विल जस्ट देखो क्या किया, ऐड फिल्टर बिफोर इनिशियल ऑथ को पहले लगा दिया और फिल्टर आफ्टर टोकन फिल्टर को बाद में लगा दिया। यहाँ पे ऑथोराइज रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट है। ठीक है, मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोल दिया कि भाई तुम ऐसा मेरा फिल्टर को प्लेस कर दो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखते हैं क्या होता है। अभी इनिशियल ऑथ फिल्टर में जाते हैं। इनिशियल ऑथ फिल्टर में मेरे को रिक्वेस्ट आएगा, राइट, एज अंजलि वाज सेइंग कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड था, मैंने बोला था कि इट विल बी द गेट रिक्वेस्ट, इट विल बी नॉट ए पोस्ट रिक्वेस्ट, लॉगिन को अभी गेट ही रखते हैं। सो हमको कैसे मिलेगा, हेडर में पास करना पड़ेगा यूज़र नेम पासवर्ड है। सो लेट मी टेक टू थिंग्स, स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, मेरे को रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर करूँगा तो वो हेडर का ओके आ जाएगा। ठीक है, अभी दोनों लॉगिन के लिए एक ही फिल्टर है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ओटीपी का कॉल है या कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड का कॉल है। कैन एनीवन हेल्प मी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, अगर ओटीपी को कुछ आया, ओटीपी नॉट नल, सॉरी ओटीपी इज इक्वल टू नल, तो ये क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड वाला है। मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि यूज़र या तो यूज़र नेम पासवर्ड भेजेगा, यूज़र नेम ओटीपी भेजेगा। मैं उस लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल लॉजिक कि अगर ओटीपी नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स इट्स ए यूज़र नेम पासवर्ड वाला रिक्वेस्ट। यस, ग्रेट। मैं अगर ओटीपी नॉट इक्वल टू नल करूँगा तो उसके बाद मेरा यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, what I need to do, I need to create a authentication object username password authentication, this is my username password authentication is equal to new username password authentication, username password authentication, right। इसमें मैं क्या दूँ, दो कंस्ट्रक्टर वाला मैं क्या दूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से मैं ऑथेंटिकेशन फिल्टर को लगा दिया कि भाई मैं तुम्हारे पहले फिल्टर करूँगा और ये फिल्टर से मैं सीधा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करना चाहता हूँ। कहाँ है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, नहीं है। सो आई नीड टू टेल स्प्रिंग सिक्योरिटी कि तुम मेरे को एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर दो। तो वो क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन लेके उसके पास जो भी है वहाँ से, राइट, देयर इज सम मेथड, इफ यू कैन सी, यस, इट कैन गिव यू द ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये कॉन्फ़िगरेशन लेके यू कैन आई कैन क्रिएट ए बीन व्हिच यू कैन यूज एनीवेयर। मैं इसको @ बीन कर दिया।
ओके। सो मेरे ऑथेंटिकेशन मैनेजर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आप सीधा ऑथेंटिकेट को कॉल करोगे तो उसके जो भी स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करेंगे, ये दोनों ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको ऑटो ऑटो ऐड कर दूँगा। सॉरी, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, क्या पास करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, रैशनल लग रहा है। हाँ, यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली हमने नहीं, ओके। वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर एडाप्टर इज द ओनली वे टू कॉल विथ एडाप्टर, नाम से ही पता चले दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी। मैं अगर कुछ चीज़ को वहाँ से लेना चाहता हूँ, आई कैन टेक इट इन फॉर्म ऑफ बिन। मैं कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, आई कैन डू द सेम थिंग। इफ यू कैन सी दिस इज द मेथड इम्प्लीमेंटेशन इट इज हैपनिंग। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके पास जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, तो उसका तो अपना एक स्ट्रक्चर है, राइट। ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यूज़र सर्विस डिटेल्स। तो अभी हमने वो यूज़र सर्विस डिटेल्स के लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करना है। ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करने के बाद वो हाई लेवल पे उसका अपना जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, आई वांट दैट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ओके, तो इसीलिए मेरे को ऑथेंटिकेशन मैनेजर एज अ बीन फॉर्म में चाहिए, जो मैं अपना फ़िल्टर में यूज़ करूँगा। ओके, जो मैं अपना फ़िल्टर में यूज़ करूँगा कि मेरे को वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर से सीधा ऑथेंटिकेट करके दे। So I'm completely bypassing the default implementation, but I am taking the advantage of its structure. So मैं authentication manager नहीं बना रहा हूँ, I am configuring a web security configure adapter, then वहाँ से जो authentication manager का बिन बना उसको मैंने ले लिया, उसके बाद मैं बोला कि मैं अपना काम करता हूँ। Try to visualize it, what Spring Security is usually doing. Whenever you are configure Spring Security, it will give you the authentication filter, authentication manager, provider, user details, service, sorry, user detail service and password encoder। ठीक है, अभी हमने क्या किया, फिल्टर हमारा है, ठीक है, प्रोवाइडर हमारा है, ठीक है, तुम्हारा मैनेजर सिर्फ हमको दे दो, ठीक है, वो मैनेजर ये इसको प्रोवाइड करेगा। और यूज़र डिटेल सर्विस हमारा प्रोवाइडर के अंदर ऑलरेडी हमारा है, यूज़र डिटेल सर्विस एंड पासवर्ड एनकोडर भी हमारा है, और प्रोवाइडर भी हमारा है, फिल्टर भी हमारा है। तुम सिर्फ मेरे को मैनेजर दे दो, मैनेजर हम नहीं करना चाहते। गॉट इट? एवरीवन? एग्जैक्टली, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ, मतलब यू कैन डू इट, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो फिर स्प्रिंग विदाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी यू कैन डू, राइट। सो मतलब कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सब कुछ खुद इम्प्लीमेंट कर दो। बट वी डोंट वांट टू डू दैट थिंग, वी वांट टू ट्विक इट समहाउ सो दैट कभी भी हम इसे इजीली किसी के साथ प्लग इन कर सकते हैं, राइट। सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट मेथड, अभी ये जब कॉल होगा, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर कौन सा प्रोवाइडर को कॉल करेगा, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कॉल करेगा। यस, उस कहीं पे बोला नहीं हमने, लेकिन ऑथेंटिकेशन मैनेजर को पता है, वो सपोर्ट मेथड को पहले कॉल करके देखेगा कि ये वाला प्रोवाइडर क्या सपोर्ट करते हैं, वो वाला प्रोवाइडर क्या सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू एल्स। एल्स में ही बहुत ही तकलीफ है। क्या तकलीफ है एल्स में, हमको क्या करना है बताओ। एल्स में हमको देना है यूजर नेम OTP ऑथेंटिकेशन, राइट।
यूजर नेम ओटीपी ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू न्यू यूजर नेम ओटीपी ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम क्या देंगे, यूजर नेम एंड ओटीपी, और ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ओटीपी सही रहा तो इस स्टेप में एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि प्रोवाइडर में हमने एक्सेप्शन थ्रो किया अगर ओटीपी सही नहीं रहा। हाँ, यस, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आया दैट मीन्स ओटीपी मैच हो गया। ये सुन लो, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको टोकन दे सकते हैं। हम एक टोकन जनरेट करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट एड हेडर, और हम ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन टोकन ही देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग ए ऑथेंटिकेशन, यू कैन गिव द ऑथराइजेशन व्हाट एवर यू वांट। अभी के लिए हम एक कस्टम टोकन देते हैं, जेडब्ल्यूटी बाद में आता है, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फ्लो, नहीं तो जेडब्ल्यूटी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट लिसन दिस वर्ड केयरफुली, मैंने एक बार बोला था कि आपको फिल्टर के बाद आपको फिल्टर चेन में आप, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये हो गया, प्रोसेस हो गया, राइट। नाउ इफ एल्स प्रोसेस हो गया, देन आई नीड टू डू द फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, राइट। मेरे को रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को वापस देना है, यस और नो, है ना। सही है। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर में आपने बीच में जो करना है, आप अभी छोड़ दो, आप अभी क्या अटक के रखे हो, दूसरा भी तो फिल्टर होगा, दूसरा भी तो कोई वेट कर रहा है उसके लिए, राइट। यस और नो, खिंच खिंच लग रहा है, नहीं देना चाहिए फिल्टर, अभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, यस। यहाँ से हम वापस दे देंगे, हम कोई भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो विल नॉट यूज एनी फिल्टर चेन डॉट टू फिल्टर फॉर दिस। तो इससे क्या होगा, एंड अगर हम इसको रन कर दिया अभी, राइट, सो यू विल सी कि क्या होगा, लॉगिन का कोई कंट्रोलर है ही नहीं, फिर भी लॉगिन मेथड कॉल होगा, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको 200 रिस्पॉन्स भी आएगा, लॉगिन का कंट्रोलर है ही नहीं, क्योंकि कंट्रोलर तक मैं पहुंचने ही नहीं दिया, मैंने उसको फिल्टर करके उधर ही, जो भी ऑथेंटिकेशन मैनेजर को करके उधर ही फिल्टर करके उधर ही उसको भेज दिया कि ये ले तेरा टोकन ले ले भाई, मेरे को आगे रिक्वेस्ट को जाने ही नहीं देना। क्लियर है। यस, देखो फिल्टर कैसे काम करता है, फिल्टर एक कोई भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट जब होगा वो रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, डू फिल्टर चेन वो मेथड आएगा, तो उसमें क्या करना है, फिल्टर चेन आएगा। नाउ देयर माइट बी मल्टीपल फिल्टर, रिक्वेस्ट जाएगा, उसमें पहले फिल्टर में आएगा, पहले फिल्टर में सब लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट को लॉग किया, सेकंड फिल्टर में चला गया, सेकंड फिल्टर में कुछ और किया, कुछ ऐड किया, रिक्वेस्ट आईडी ऐड किया, सेकंड फिल्टर में चला, थर्ड रिक्वेस्ट में चला गया, थर्ड कुछ करेगा। सो आप फिल्टर जो भी आपका प्रोसेसिंग करना है, उसके बाद आपको ये मेथड, राइट, का इम्प्लीमेंटेशन जस्ट लिखते हैं फिल्टर चेन और डू फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सो दैट फिल्टर चेन में और जितना फिल्टर है उसको एक्सेस मिल जाएगी इसके बाद जो है। बट इस रिक्वेस्ट के लिए हम ये नहीं चाहते कि वो रिक्वेस्ट आगे बढ़े, यहाँ से उसको सीधा वापस, ओके। सो इसीलिए हमने इधर फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। इफ़ यू रीड एनी डॉक्यूमेंट और सी एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्टर, सब जगह भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि फिल्टर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
फिल्टर चेन एक आर्गुमेंट ऐसा आएगा, आप रिक्वेस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स में अगर आपको कुछ भेजना है भेज सकते हो, राइट। बट यू नीड टू, आफ्टर दैट यू नीड टू कॉल दैट फिल्टर चेन सो दैट नेक्स्ट फिल्टर को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमको नेक्स्ट फिल्टर में भेजना ही नहीं है, ठीक है। यस, ओके। यहाँ पे क्या करना है बताओ, टोकन फिल्टर। अभी टोकन फिल्टर से पहले एक काम करता हूँ, तो दूसरा कहीं से एक तो ये ले लेता हूँ, नहीं तो कंट्रोलर चुरा के लेता हूँ दूसरा कोई कोड से, नहीं तो करना क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है इसी को लेते हैं, बट उसको ये कर देंगे। कॉपी, पेस्ट। मेरा कंट्रोलर भी आ गया, इसमें सिर्फ टेंशन मत लो, आई विल शेयर एवरीथिंग। ठीक है, हेलो है। अभी हम टोकन फिल्टर में देखते हैं क्या करना है। टोकन फिल्टर में क्या आएगा, क्या आएगा टोकन फिल्टर में? टोकन फिल्टर में क्या करना है, बोलो बोलो। जो हमने रिस्पॉन्स में भेजा था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वही टोकन आएगा वापस, ये सुनो, ठीक है। टोकन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। हेडर का नाम क्या है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अभी टोकन मेरे को पता है क्या हो, क्या मैंने भेजा था, टोकन इक्वल्स क्या है, ए बी सी डी एफ, राइट। यहाँ पे क्या करना है बोलो, एक मिनट, मेरे को जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे क्या करना है, आई जस्ट कम बैक। यस, बैक, बोलो। एनीवन वांट टू गिव अ ट्राई? कोई बोलोगे? हो गया ना अभी इसको तो। अब क्या भाई, आप टोकन तो दे दो सही से, ऑथेंटिकेशन अच्छे से टोकन दे दो। अब कितना इसको झुलाओगे, इतना कुछ कर दिया, ओटीपी भी मैच हो गया, टोकन भी मैच हो गया। सो व्हाट विल डू, विल यूज द ऑब्जेक्ट विथ, right, I need to get the token, or I need to get the something user। अभी समझ लो कि यूज़र मेरे पास नहीं है,
क्योंकि टोकन से तो मैं यूज़र निकाल नहीं सकता, तभी टोकन को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, टोकन नल, और उसको मैं सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा यूज़र। ठीक है, क्या होगा? ठीक है दिया, और उसके एग्जैक्टली यूजर डिटेल्स का ऑथोरिटीज भेजे थे। अभी हमने क्या किया, एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें समझ लो कि टोकन को एज ए नाम दिया, क्योंकि हमको टोकन पता है, हमको पता नहीं कि टोकन के अंदर किसी ने तो यूज़र नेम लिखा नहीं। अगर यूज़र नेम लिखता तो शायद पता चल जाता, बट अभी तक लिखा नहीं, तो इससे सिंपल टोकन ABCDA तो टोकन के साथ मैच हो गया, तो मैंने उसको एक यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बना दिया। और मेरा सिंपल नेक्स्ट काम होगा क्या, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट सेट ऑथेंटिकेशन में ये ऑथेंटिकेशन को ऐड कर देना है। संपला, खत्म। ओके, अगर टोकन मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, एल्स response dot set status http status dot bad request। अगर ये मैच कर जाता है तो हम यहाँ से अभी, लेकिन हमको करना है, सो लेट मी यहाँ पे कर सकते हो फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, क्योंकि अभी नहीं करूँगा तो मेरा हेलो कंट्रोलर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ओके, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, टू मच कोडिंग, टेस्ट कर लेते थोड़ा। यस नो, ठीक है, ओके। बोलो बोलो हाँ या ना बोलो, टेस्ट करें। एक प्रॉब्लम है, मैं रेस्ट टेम्पलेट का बनाया नहीं कहीं पे, तो हमको एक बीन भी बनाना पड़ेगा। मैं वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर में ही बना देता हूँ एक बीन, जो रेस्ट टेम्पलेट वापस करेगा, नहीं तो ऑटो ऐड में मिलेगा नहीं उसको। करे रन, क्या बोलते हो, करके देख लेते हैं।
नहीं करान करूँ क्या? देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। फटेगा तो इतना बड़ा कोड एक बार में चलना तो मुश्किल है। पता नहीं, चल भी सकता है। क्या बोल रहा है? क्या बात है? ये बोल रहा है कि भाई तुमने तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज किया? बोले कि तुमने यहाँ से यूज़ किया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आपने यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ किया, फिर आपने ऑथ प्रॉक्सी इधर यूज़ कर दिया। सो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, राइट? सो इसीलिए हमको जो करना पड़ेगा, एक अलग कॉन्फ़िग फाइल में रेस्ट टेम्पलेट को डालना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सर्कुलर डिपेंडेंसी हो गया, इफ़ यू अंडरस्टैंड करेक्टली। सो ये बिन डिपेंडेंसी जब मैनेज होता है तब आप सोचोगे बेसिकली, मतलब वो अंडा पहले है कि मुर्गी पहले, उसका प्रॉब्लम में फंस गया कि मैं कौन सा बिन को पहले बनाऊं। ये तो सर्कुलर डिपेंडेंसी है। ठीक है, स्टिल इट विल give me the same thing, but we can somehow handle this. ओके, ठीक है, ये तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? सो हम ये जो बोल रहा है कि आप मेरे को बोल दो कि सर्कुलर रेफरेंस को ट्रू कर सकते हो, मैं उसको बोल देता हूँ कि ठीक है, मेरे लिए सर्कुलर रेफरेंस ट्रू कर दो आप। ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में डाल दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनिशियल ऑथ फिल्टर इज यूजिंग वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, बिकॉज यहाँ से मेरे को मिलता है सिक्योरिटी मैनेजर। अगेन अब उल्टा भी है, राइट? और इनिशियल ऑथ फिल्टर को आप ऐसे इंजेक्ट कर रहे हो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, राइट? सर्कुलर डिपेंडेंसी है, मतलब वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर से आप ऑथेंटिकेशन मैनेजर लेते हो, जो आप यूज़ कर रहे हो इनिशियल ऑथ फिल्टर में ऑटो ऐड कर रहे हो, और आप वेब सिक्योरिटी अंदर के अंदर आपने इनिशियल ऑथ फिल्टर को ऑटो ऐड किया। तो मैं तो सर्कुलर में फंस गया ना, किसको पहले बनाऊँ? आइदर यू लेट मी नो कि मैं सर्कुलर में ना फंस गया, एक एक करके बनाऊँ। तो इसीलिए स्प्रिंग मेन अलाउ सर्कुलर रेफरेंसेस ट्रू। अभी मैं रन करूँगा, सो इट विल रन। क्या बात है, चल गया 8081। ओके, लेट्स सी हाउ व्हाट वी कैन डू। हमारे पास H2 कंसोल ओपन है। कल शायद वो प्रोग्राम चालू था क्या, मतलब बहुत वाला चालू है, देख लेता हूँ। ओके, नहीं, ऑथ वाला चालू नहीं है। OTP ऑथ सर्वर को पहले चालू करते हैं। ओके,
अभी देते हैं लोकल होस्ट 8080 h2 कंसोल मैं आऊँगा शो इट विल जस्ट रिडायरेक्ट मी टू दिस OTP मैं कनेक्ट करूँगा सो हियर इज़ माई थिंग कल जो यूज़र बना है तो वो सब है यस यूज़र 1 यूज़र 2 स्नेहल तीनों है यूज़र OTP भी है ठीक है तीनों के लिए यूज़र OTP है बट लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डू द थिंग्स so it is now let's go and do the get method मैं 8081 पे हूँ मैं पहले लॉगिन करूँगा यस मेरे को हेडर में देना है क्या देना है हेडर में मेरे को हेडर में देना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़र नेम क्या देना है यूज़र 1 और पासवर्ड में देना है क्या था पासवर्ड 12345 ही था ना यस वो इनक्रिप्टेड करके दिया है ठीक है देखते हैं क्या होता है अगर चल जाता तो सही है नहीं चलता है तो डोंट नो क्या होगा नो ऑथोराइजेशन कोई ऑथोराइजेशन नहीं है इसमें ये छोड़ो यूज़र नेम OTP हमको नहीं चाहिए गेट मेथड में ओके ट्रिगर करें यस और नो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा लो फॉरबिडन आ गया कहीं पे कुछ तो लोचा हुआ है लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम कहीं पे एक्सेप्शन आया लेट्स सी रो पासवर्ड कैन नॉट बी नल ओके कहाँ पे है और OTP और सर्वर में यहाँ पे 500 आया क्योंकि हमने जनरेट ऑथ प्रॉक्सी में चेक OTP को क्यों कॉल किया सॉरी 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 यार चेक OTP को अच्छा है इसमें कुछ तो गलत किया मैंने प्रॉक्सी में रुको OTP चेक ठीक है और ये ऑथ यूज़र देखते थे कहाँ से कॉल किया ऑथेंटिकेशन क्या है यूज़र सो यूज़र सेट पासवर्ड गेट के ऑथेंटिकेशन गेट क्रेडेंशियल और ये गेट क्रेडेंशियल कहाँ से कर रहा हूँ मैं फिल्टर में जाके देख लेता हूँ कहाँ पे कुछ गलत किया यूज़र सेट OTP चेक OTP यूज़र को भेजा ये ठीक है फिल्टर में कुछ गलत किया मैंने इनिशियल फिल्टर में OTP इज इक्वल टू नल देन यूजरनेम पासवर्ड रिक्वेस्ट एंड गेट हेडर वही तो है ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे जाता है फिर ऑथेंटिकेट करता है आई थिंक वो उधर वाला क्यों गया सो ये प्रोवाइडर गलत ले लिया क्या लेट मी टेक ए लुक प्रोवाइडर में कुछ गलत तो नहीं कर दिया यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ठीक है OTP ऑथेंटिकेशन सही तो है check user check okay let me debug it नहीं तो समझ में नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ उसके बाद प्रोवाइडर किधर है
username password authentication provider proxy के रिटर्न क्या आया then we are going to do okay चलो Spring Security OTP resource server application को मॉर्निंग ये चले ले आते कान के बना है okay let's debug it चलो यहाँ पे हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हेडर में दिया राइट यस हेडर से रिक्वेस्ट हेडर से ले रहे यूज़र नेम यूज़र 1 पासवर्ड 1 2 3 4 5 ठीक है गेट रिक्वेस्ट लॉगिन भी देखते हैं so I got the username correctly I got the password ठीक है OTP null है OTP null true हुआ यूजरनेम ऑथेंटिकेशन बना फिर ओके ऑथेंटिकेट होके क्या हुआ ऑथेंटिकेशन मैनेजर देखो यहाँ पे 2 प्रोवाइडर है एक है तुम्हारा इसके अंदर ऑथ प्रॉक्सी ठीक है दैट इज फाइन इसके अंदर ऑथ प्रॉक्सी है ठीक है दैट इज फाइन देखते हैं उसके बाद क्या होगा I think it went fine कंप्लीट हुआ यस 2200 ओके तो वही इशू था एक जगह पे मेरा जो यू नो देयर सम प्रॉब्लम सो आई शुड गेट ए यूजर 1 को एक लेटेस्ट ओटीपी मेरे को मिलना चाहिए 5167 था लेट मी रन दिस अगेन कैसे हुआ 5167 नहीं हुआ क्या लेट मी टेक ए लुक क्या हो रहा है दूसरा वाला एप्लीकेशन ओटीपी ऑथ सर्वर में एप्लीकेशन कॉल नहीं हुआ something resource server okay let me put both in debug mode then we'll understand बट इसके अंदर कंट्रोल किया क्यों नहीं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट मेथड ऑथेंटिकेशन डॉट क्लास just give me a few minutes
एक बार डीबग में डाल देते हैं, शायद कुछ इधर उधर का कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। ओके, सो अभी हम जो करेंगे वो है यूज़र नेम पासवर्ड से 8081 पे लॉगिन कॉल करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो वी गेट द यूज़र नेम, वी गेट द पासवर्ड, वी गेट OTP, so you got authenticate method में जा रहा है, so it should use the provider, it is not using the provider। Okay. Why it is not going? Just localhost 8080 API/v1/user.auth. This is the thing we're doing, right? Auth URL/user.auth, OTP.check. Okay. सॉरी, ये मैं देखता हूँ, आराम से देखता हूँ। आई थिंक आई नीड टू टेक ए लुक। कहाँ पे तो कंट्रोलर कुछ मिसिंग है, बट ओके। सो आई थिंक गिव मी सम टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम कॉल। मैं ये कल ठीक करके, सो व्हाट एवर द रॉन्ग थिंग आई डिड, बट ओवरऑल चीज़ समझ में आया क्या किया। देर इज सम स्मॉल मिस्टेक आई डिड, आई थिंक दैट आई नीड टू टेक ए लुक, क्यों इधर से उधर नहीं जा रहा है। बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे चीज़ पूरा फ्लो हुआ? यस। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग। टुमारो आई विल फर्स्ट, माय प्राइमरी थिंग इज आई विल फिक्स दिस एंड वी विल गो अगेन, बिकॉज कोड है तो। एंड इन द मीन टाइम आई विल अपलोड द कोड, वॉट एवर ये रॉन्ग है राइट है जो भी है, इसको मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ। सो यू गाइज जस्ट टेक ए लुक, देन टुमारो वी विल गो थ्रू अगेन द होल थिंग। ओके, तो हमारे पास जो दो प्रोजेक्ट है, यही हम समझते हैं कि कैसे पूरा किया है। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिकली दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन, दैट स्प्रिंग सिक्योरिटी को पूरा कंट्रोल किया, उसका सिर्फ मैनेजर यूज़ किया, उसको हमने प्रोवाइडर दे दिया, उसको हमने प्रोवाइडर के इम्प्लीमेंटेशन हमारा है, फिल्टर भी हमारा है, हमने सिर्फ उसका मैनेजर को यूज़ करके पूरा चीज़ को प्लग इन किया। हमारा दूसरा एक सर्वर है जहाँ पे मैं ऑथ को मेंटेन करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द वन थिंग, इट्स लाइक द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वी कॉल, कि आपका कोई एप्लीकेशन अगर यूज़र नेम पासवर्ड एंड यूज़र नेम OTP के साथ ऑथेंटिकेट करना है,
that we can do. Okay, ठीक है. I'll go through again this thing. अच्छा हुआ कि चला नहीं, चलता तो आज ही ख़त्म कर देते. तो tomorrow you will get some time, right, to understand. And I'll in the meantime I'll just upload the code. चलेगा. चलो.